Good morning, students. This is part 4 of the chapter Theory of Consumer Behavior. In this video, we are going to learn about indifference curve analysis. What is an indifference curve? An indifference curve is a curve which represents all those combinations of two commodities which give same level of satisfaction to a consumer. Each point on IC represent the same level of satisfaction. Indifference curve क्या है बेटा? The curve which shows us the combination of two goods. वो curve जिसमें हम दो goods की combinations को देखते हैं and these combinations gives the same level of satisfaction to a consumer. आप कोई भी combination लोगे they will give the same level of satisfaction. What does this means? Each point on IC represents same level of satisfaction. हर एक point IC curve में same level of satisfaction show करता है. You can see here the graph. OX axis and OY axis contain the two different commodities, food and clothing. आप देख रहे हो OX axis में food है और OY में clothing है. IC curve indifference curve है बेटा, ये downward slope कर रहा है and two combinations are there, A and B. Whether you will choose the A combination or a B combination, you will get the same level of satisfaction. आप चाहे A चूज़ करो चाहे B चूज़ करो, दोनों में आपको सेटिस्फैक्शन सेम लेवल का मिलेगा. अगर आप A चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्लोथिंग ज़्यादा है, फूड कम है बेटा. अगर आपको फूड की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है तो आप क्लोथिंग की क्वांटिटी क्या कर दोगे? डिक्रीज़ कर दोगे. तब आप B कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम अपनी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ properties of indifference curve. The properties of an indifference curve, that is IC, are explained below. First point, an IC slopes downward from left to right. जो IC curve है बेटा वो left to right downward slope करता है. ठीक है. This shows that an IC has a negative slope. इसका मतलब IC curve का कैसा slope है? Negative. This property is based on the assumption that if a consumer consumes more of one commodity, for example food, he must consume less quantity of the other, for example clothing. अगर वो एक कॉमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और दूसरी कॉमोडिटी को इंक्रीज़ करना चाहता है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? उसको दोनों क्वांटिटीज़ में से एक क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, है ना. यहाँ पे क्या दे रहा है? अगर वो फूड को ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको क्लोथिंग को कम करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड रिसोर्सेज और इनकम, क्योंकि उसके रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, इनकम. ही विल हैव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज़. उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो एक करे चाहे वो बी करे. वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स अपनी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है. फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो यू कैन सी OX axis contains the food and OY axis the clothing. IC is the indifference curve. AB are the two combinations. When the consumer is choosing A, it means they are taking more clothes and less food. But अगर कंज्यूमर चाहता है वो फूड की कंजम्पशन इंक्रीज़ करने के लिए, then they have to reduce the consumption for clothing. Because why? ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि इनकम्स हमारी लिमिटेड है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स जाता है. कॉन्वेक्सिटी ऑफ IC implies that it was inward to the origin. You can see the graph here. OX axis contain food and clothing and IC is an indifference curve that is inward to the origin. origin की तरफ से बीच में से जा रहा है, टर्न हो रहा है उसके अंदर, फिर बाहर आ रहा है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ IC डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द IC कर्व ड्यू टू द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्लोप क्या होता जाता है? कम होता जाता है. और किसकी वजह से होता है? दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है. It indicates that the rate at which the consumer is willing to substitute cloth for food diminishes with every additional unit of food. मतलब कंज्यूमर विलिंगली दूसरी कॉमोडिटी को अलग कॉमोडिटी से क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है. यहाँ पे फूड की कॉमोडिटी को क्लोथिंग से सब्स्टिट्यूट कर रहा था जैसे.
ठीक है। द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस ऑफ वाई इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ एक्स। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक कॉमोडिटी को वो कम कंज्यूम करने के लिए रेडी है या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है और दूसरी कॉमोडिटी को परचेज करने के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर दीज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, हायर आईसी यील्ड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने कई सारे आईसी कर्व्स ड्रॉ करे हैं ग्राफ में। ओ एक्स एक्सिस गुड कंटेन कर रहा है और ओ वाई एक्सिस गुड वाई कंटेन कर रहा है। IC1, IC2, IC3 3 कर्व्स मैंने ये ड्रॉ करे हैं, ठीक है बेटा। तो हर एक जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग है। सेम कर्व में पॉइंट्स होंगे तो सेम सेटिस्फैक्शन होगा, पर एज वी गो हायर इन द इंडिफरेंस कर्व हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। हियर द IC रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन विच यील्ड्स मोर सेटिस्फैक्शन देन द कॉम्बिनेशन ऑन लोअर IC, सिंस द फॉर्मल विल गिव अस मोर अमाउंट ऑफ बोथ द कॉमोडिटीज़। इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि जब हम IC1 कंज्यूम कर रहे थे तो हमारी कॉमोडिटी कम थी, IC2 जब कंज्यूम करने लगे तो हमारी नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ बढ़ गई। इसी तरीके से IC3 पे अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम C कॉम्बिनेशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ कॉमोडिटीज़ इंक्रीज़ हो जा रही हैं, तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट सेम इंडिफरेंस कर्व में अगर पॉइंट होता तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होता। यहाँ पे सेम इंडिफरेंस कर्व में नहीं है ना बेटा। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता। Indifference curves are always parallel to each other. Between the two indifference curves, there is no common set of points as both represent bundle of goods achievable at different income level. ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स, मतलब बंडल्स ऑफ गुड्स को शो कर रहा है। अगर हम A कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और B कॉम्बिनेशन देख रहे हैं और C कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, सब में कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स अलग अलग हैं, ठीक है। दैट इज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट आता है बेटा इंडिफरेंस मैप। हमने अभी आपको पीछे जब कर्व्स दिखाए थे तो IC1, IC2, IC3 एक ही साथ दिखाए थे, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं हम। इसको बोलते क्या है बेटा? व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द टू मेनी इंडिफरेंस कर्व्स इन द सेम ग्राफ वी कॉल इट एज इंडिफरेंस मैप। इसको सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है। जब हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ पे शो कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफरेंस मैप। The indifference map refers to a set of indifference curve that reflects an understanding and gives an entire view of the consumer's choice. यहाँ पे कंज्यूमर्स की चॉइस का पूरा व्यू बताता है कि किस लेवल पे, कितनी इनकम पे वो कितनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। OX axis contain the good X, OY good Y and IC1, IC2, IC3 these are the 3 indifference curve और तीनों indifference curve में अलग अलग level of satisfaction है और इनको जब हम एक साथ indifference curve एक ही curve में show करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? indifference map। Now marginal rate of substitution, ये word अभी हमने पीछे पढ़ा था और मैंने आपको कहा था मैं explain करती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है इट रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड्स। यहाँ पे कंज्यूमर सब्सटीट्यूट कर रहा है एक गुड्स को दूसरे गुड्स से, ठीक। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इन MRS इज change in Y commodity divided by change in X commodity, that is delta Y and delta X, ठीक है। MRS इज़ नेवर कॉन्स्टेंट, इट वेरीज ओवर द IC कर्व। जो MRS है वो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता बेटा। क्यों? क्योंकि आप एक कॉमोडिटी को कम करोगे तभी दूसरी कॉमोडिटी को इंक्रीज करोगे, तो ये IC कर्व में वेरी होता रहता है। एज वी मूव अलॉन्ग द इंडिफरेंस कर्व MRS फॉल्स ऑल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में नीचे की तरफ आते जाएंगे तो MRS भी क्या होता जाता है? फॉल होता जाता है और इसको और क्या बोला जाता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आई होप बेटा ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।